opportunity that on this first PTI Worker Convention hereby resolves that wants to thank PTI Canada, all the regional presidents and PTI members for joining this historic convention, and special thanks to President Hamilton PTI for hosting this convention. This convention unanimously resolves that steps taken by Prime Minister Imran Khan have changed the course of history in granting overseas Pakistanis the right of vote through parliamentary legislation. We offer our thanks for continued recognition he has given and continues to give to overseas Pakistanis and their immense support and commitment to Pakistan. We appreciate the successful launching of Roshan Digital Pakistan scheme. This has facilitated overseas Pakistanis to participate in national economic activities. We believe the electronic voting machine will make the voting process transparent and will resolve malpractices of the past. It is unanimously resolved that every PTI member will do the best of their ability to make efforts to enroll overseas to obtain NICOP as first priority and then enroll themselves as voters. We also want to appreciate the efforts made by PTI government for improving the image of Pakistanis on the international stage. We recognize the revolutionary efforts made through Ehsaas program, health card scheme, focusing all energies in developing hydroelectric projects, environmental effort through Green Pakistan and agricultural development, building infrastructure and focusing all energies to move CPEC to front and center as the pivot of a bright future of Pakistan. Despite serious challenges due to pandemic and past mishandling of the economy, managing the challenges and reduce chronic deficits. All efforts by PTI to move Pakistan forward towards a bright and successful future. So please raise your hands to pass this resolution. Everybody. We all second to approve this resolution. So everybody to raise hands to pass this resolution. Okay, thank you very much. The resolution is passed. Imran Khan, first and the only leader who took a stance on no lockdown under COVID crisis, and world acknowledged that smart lockdown. आज इस वक्त भी world adopted it. United Nations Secretary General recognized Pakistan as a test case and a lead case to be learned from. That is the vision of the leader, and he took his decision, he stood with it despite of, I know, all segments of the governance structure taking positions to the contrary and advising to the contrary. उसमें कई लोग फारग भी हुए. Prime Minister नहीं हटा और ना बला ना टला, and Pakistan stood victorious comparing to underdeveloped and developed nations which suffered COVID. Despite of that COVID economy also, Pakistan stayed relatively stable. So leader का test, आपने economic management, national security threat, कुदरती आफत, इससे बड़ा कोई
टेस्ट नहीं होता एक ही 3 साल के मुख्तसर अरसे में, अभी ये चीज संभल ही नहीं पाई थी। तो अफगान क्राइसिस, प्लीज स्टे फोकस्ड। अफगान क्राइसिस वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। पाकिस्तान 40 साल से उस भंवर में विक्टिम है। लाखों लोग हमारे जाने जा चुकी हैं और 2 generations have suffered। हमारा जो ब्रेन का एवरेज वेट है हमारे न्यू बॉर्न का और हमारे 20 ईयर एडल्ट का, क्या मैं कहूं, स्टंटेड ग्रोथ तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। हमारा जो कल किसी मां का जना हुआ लाल था जो अपने आप को आशिक रसूल कह के बड़ा टाउट कर रहा था ऑन द मीडिया, what he did with that Sri Lankan poor worker in Sialkot, my head falls down with shame। ये ब्रेन कैलिबर हमारी पॉपुलेशन का हो गया है। इस 22 करोड़ अवाम की जो हम इंसान से हैवानियत का जो सफर है वो पिछले 70 सालों में जो पाकिस्तान ने जिस तेजी के साथ डिक्लाइन किया है, शायद ही हम किसी और सोसाइटी में कंपेयर कर सके। हमें अपने फॉल्ट्स को खुल के एडमिट करना चाहिए। हम बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जिस एहसन तरीके से वाशिंगटन का विजिट, आप में से कई दोस्त हजरात आए थे, मुझे याद है दैट इवेंट जो आप जैसे दोस्तों के जज्बे और जोश और मोहब्बत के साथ, इट वाज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एवर, congregation of overseas Pakistanis 8 blocks away from the White House, and आपके लीडर ने एक ऐसा मैसेज दिया था। And again over there I must share with you a history and fact. Foreign Office, Ambassador, Foreign Minister, Foreign Secretary, all were shaking in their pants. I have no qualm about, they had reservations, they had concerns, they were worried, so much so that a night before foreign minister जब वेन्यू पे मेरे साथ खड़ा था तो he expressed कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर ये खाली रह गया तो। Ambassador of Pakistan officially conveyed to government of Pakistan, मैं आपको लीडरशिप की कैपेसिटी एंड विजन पे लेके जाना चाहता हूं। सबका आर्ग्यूमेंट यह था कि नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग 9 o'clock, प्राइम मिनिस्टर वुड बी कॉलिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द व्हाइट हाउस, और इस डॉक्टर ने ये 20,000-22,000 का हॉल जो है बुक कर लिया है आपका जलसा करवाने के लिए। ये कोई पगला है, इधर तो 5 या 6,000 7,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और हॉल खाली हुआ तो बदनामी, कोई बदमज़गी हो गई तो बदनामी, बाहर MQM और PDM वाले जो है वो PTM वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने परमिशंस ली हुई थी, उधर कोई हंगामा हो गया तो बदनामी। तो ब्यूरोक्रेट्स तो इसके नेड़े नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की। मुझे तो जो था सो था ही, हमारा तो पगलापन एक जुनून है। I had the blessings of the Prime Minister के, और इनका कंसर्न लेजिटिमेट था, एंड I relate to that कि अगले दिन मॉर्निंग में अगर कोई इवेंट हो जाए नेगेटिव तो that would be the news in the White House, that would become the talk of the beginning of the visit। तो फॉरेन ऑफिस बहुत मोहतात होती है, which is their job, there's nothing negative about it, but that was their briefing। प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया और पहले दिन से कहा कर लोगे, मैंने कहा जी हो गया।
हॉल इतना बड़ा ले लिया, मैंने कहा बाहर लोग खड़े होंगे, और प्राइम मिनिस्टर सुरखरू हुआ आपकी मोहब्बत से। एक historic turnout in Washington. Next morning was the talk of the town in the White House of Trump. Trump himself was flabbergasted. He was just lost, क्योंकि वो तो पब्लिक ये अरीना का इमेज जो है उसकी खोपड़ी पे चढ़ा हुआ था. And your leader conducted the level of the dignity and the grace. So again, the skill, the capacity and the capability of the leader need to be looked at, और credibility leader की उसकी performance से बनती है. अफगान क्राइसिस में जो डर था कि पीस तो ऐसे नहीं होना, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे. मेरे मीडिया के हजरात यहाँ बैठे हैं, आप में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स होंगे. व्हाट वाज द कंसर्न कि पाकिस्तान स्केपगोट बनेगा. अमेरिका चाहे वहां हो या निकले, तालिबान हो या ना हो, वहां पे सुकून तो होना नहीं है, और विक्टिम पाकिस्तान ने होना है, और मलबा सारा पाकिस्तान पे आना है, और वर्ल्ड ओवर में ये फैटफ की तलवार लटकाई हुई है, और पाकिस्तान वुड बी द विक्टिम. यकीनन हमारा भी ये फेयर था और अभी भी है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से नेविगेट किया इस नेशनल सिक्योरिटी टेस्ट को, I must share with you, and I am privy to certain things. It is all because of Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, and his confidence, his knowledge, his historic positions. He could stand up and talk to President Biden. Didn't I tell you in 2004? ये आपका लीडर इस वक्त क्रेडिबिलिटी एंजॉय करता है. ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. अब आ जाए और क्या जी कर लिया. आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक चल रहा है पाकिस्तान में. थोड़ा सा मैं आपका तवज्जो फेज 2 के लिए चाहूंगा. ठीक है, कोई सोना तो उगता नहीं है उस जमीन पे, बददियानती के तो पहाड़ है हमारे वतन में, कोई शक नहीं है. 2 नंबरी और शॉर्टकट के हम माहिर हैं. वल्चर कल्चर पाकिस्तान की रगों में दौड़ रहा है. मरीज़े मुमलिकत इतना बीमार कर दिया गया है कि हमारा नौजवान दूसरे इंसान को घसीटना और उसका कत्ल करना और उसको आग लगाना, उस पे अपने आप को हीरो समझ रहा है, जो कि मुजरिम है. हमारा नौजवान बारूद की जैकेट पहन के फड़कने के लिए तैयार है. ये इसी पाकिस्तान में हो रहा है, हुआ है. बावजूद कोरोना के, बावजूद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के, जितनी फोकस, जितना कंट्रीब्यूशन, जितना एसेट एंड फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द हैव नॉट्स इन पाकिस्तान, नीचे वाले तबके का ख्याल करना, नीचे वाले तबके की बात करना, उनके लिए असिस्टेंस के मौके क्रिएट करना. ड्यूरिंग कोविड फाइनेंशियल स्टाइपेंड्स डोर टू डोर पहुंचाना विदाउट अ सिंगल. पॉलिटिकल अपोनेंट्स आर अवेयर, अवेक एंड वाइब्रेंट इन पाकिस्तान. Not a single question raised on appropriateness of the allocation of funds in Pakistan during the COVID financial assistance. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि सोशल नेटवर्क खड़ा कर दिया अंडर द फ्लैगशिप ऑफ एहसास प्रोग्राम.
ये लीडर की विजन, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, कमिटमेंट टू द कॉज एंड हार्ड वर्क। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2018 में किधर थी? मेरे मीडिया के दोस्त, जर्नलिस्ट, नॉलेजेबल लोग जो पाकिस्तान को डेली फॉलो करते हैं, फैसलाबाद लूम्स बंद, बेरोजगार इस वक्त एक्स्ट्रा ओवर टाइम फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हैव रिजन 35% ईयर ओवर ईयर। कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? ओ जी इन्ने वजीर तब्दील हो जाते हैं, सैकटरी तब्दील हो जाते हैं, कोई ऑर्डर नहीं गा, कोई गवर्नेंस नहीं। अगर गवर्नेंस नहीं है तो एक्सपोर्ट्स हवा में तो नहीं हो रही। नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सब दोस्तों का कोई ना कोई चक चुभ रहा, तो कोई जड़ा वाला, तो कोई बेदियां दे, कोई किथे तो किथे, कोई ना कोई रूरल लाइफ से लिंक है हम सबका। बिल्कुल रूरल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी इन लास्ट 3 years, कोई मुझे नाकिद कह दे कि नहीं है। दैट इज टेस्ट ऑफ द लीडरशिप। फॉरेन रेमिटेंस कहां थी, कहां खड़ी है? वी हैव क्रॉस्ड $30 billion। माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू, क्रेडिट गोज टू ओवरसीज पाकिस्तानी। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर स्टेटमेंट की शक्ल देखता है तो उससे 2 ही चीजें पूछता है, रेमिटेंस इस महीने में क्या है और आरटीपी में डिपॉजिट्स क्या है। And mashallah, what a remittance and what a contribution of overseas Pakistanis in the deposits in Roshan Digital Pakistan। विजन है, परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की नेशनल एक्सपोर्ट्स $22-23 बिलियन पे होती थी। ये नवंबर की एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट $3 बिलियन को क्लोजली टच कर गई है। इफ दैट गोज द स्टैंडर्ड, बाय जून दिस 2022 we will inshallah cross $30 billion of exports of Pakistan। That is aggregate 30% increase from what he got in 2018। So अपने लीडर की अगर आपने बात करनी है तो उसकी परफॉर्मेंस से बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड से बात करें। एंड वी आर प्राउड कि वी आर डिलीवरिंग। हम एक स्टेबल येट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें हमारे पास अपनी पार्टी की मेजॉरिटी भी नहीं है, हमारे हैंड्स आर टाइड, हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते। खान का एजेंडा उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और आ जाए उस वल्चर कल्चर पे, लास्ट सेगमेंट ऑफ माय सबमिशन। ये वो वल्चर कल्चर है जिसने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिसमें हमारे तमाम इदारे और खून लगा हुआ जिनकी जबड़े में, वो मीडिया हाउसेस, आई डोंट हेजिटेट इन आइडेंटिफाइंग। और वो मुफक्कर जो लिफाफा पकड़ने से ग्रेजुएट कर चुके हैं, अब वो थैलियां पकड़ते हैं। और वो इंस्टीट्यूशंस जिनको हड हरामी की आदत पड़ चुकी है, वो सिस्टम्स जो डिके कर चुके हैं, ये वो वल्चर कल्चर है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस और हैंड इन ग्लव फॉर लास्ट 70 years, जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान हम देख रहे हैं। इमरान खान का किया हुआ नहीं है। और ये जो बागड़ बिले पॉलिटिकल प्लंडरर्स ऑफ पाकिस्तान,
I'm sorry, democracy means equal opportunity for everyone to elect their leaders. But जो culture पैदा हो गया पाकिस्तान में, a crook, electing a crook, supporting a crook and naming it as a democracy, ये culture है पाकिस्तान का। पीएम की कैबिनेट में इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर उस कन्विक्शन के साथ, उस एजेंडा पे, उस लगन के साथ काम करने वाले शायद उतने लोग नहीं हैं। आई डोंट माइंड सेइंग दैट, मजबूरी है, कोलिशन है। अभी भी उधर बड़े बड़े क्रांट बैठे हुए हैं जो सिस्टम उसी वल्चर कल्चर को दवाम देना चाहते हैं। एंड जो इस वक्त एनवायरनमेंट पैदा की जा रही है या कहने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया और इवन ऑन द नेशनल मीडिया सम ऑफ द पंडित्स, this is a message from overseas Pakistanis to those who are trying to create a disinformation and disservice to the motherland कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं रहेगी अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। इमरान खान, पीटीआई, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। हम रिस्पेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को, मगर हम फाइट बैक करेंगे डिसइंफॉर्मेशन को। हम रिस्पेक्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को, हम फाइट बैक करेंगे डिसऑर्डर को। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर अपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, मगर हम रिजेक्ट करेंगे हुल्लड़बाजी को। वी आर देयर एंड द ओवरसीज पाकिस्तानीज who remit $30 billion every year stand firmly behind Imran Khan. और वो इदारे, वो इंस्टीट्यूशंस, वो सिख सोच, वो फरसुदा ज़हनियत जो ये बैठ के फैसला कर ले अपने दफातर में कि ये साजिश होगी और वो साजिश होगी और ये सेक्रेटरी यूं कर लेगा और वो वर्दी वाला यूं कर लेगा और वो पुलिसिया ये कर लेगा, उनको ये मैसेज है इस ईवान से, ये टोरंटो के इस हॉल से, एंड आई एम रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑन दैट स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग कि होश के नाखून लें। इमरान खान के पीछे एक स्टेल्थ फोर्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान खड़ी है। भूल जाए उस वक्त को जब नेशनल सिक्योरिटी की इजारादारी सिर्फ चंद अशखास के पास होती थी। नेशनल सिक्योरिटी के अलंबरदार और उसके प्रोटेक्टर इस हॉल में मौजूद हैं, हर ओवरसीज कंट्री में मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सपा सलार हैं, वो फाइटर हैं जो इमरान खान के साथ सीने से सीना मिला के खड़े हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ा क्योंकि बचपन की आदत है, तकरीरें जब करने का मौका मिले तो करनी पड़ती हैं। मैं अब काम की बात पे आता हूँ। हमने आज हमारी अपनी इंटरनल डिलिब्रेशंस हुई, सारे जज्बात उमड़ आए वहाँ पे। हर किस्म की बात होती है जब घर में आप बात करते हैं, आपस में मिलते हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले 2.5 सालों में जो कनाडा में पीटीआई का काम शुरू हुआ और जो जिस तरीके से हम सब वॉलंटियर हैं, हम सब एक लगन के साथ, उस मिट्टी से मोहब्बत है। इस हाल में बैठे हुए जो ज्यादातर मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ अस, मैं तो पगला हूं ही, छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, मगर मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारे बच्चे पाकिस्तान जाके सरवाइव नहीं कर सकते इस कि वो वहां पे अपनी लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस कर सकेंगे। लेट्स बी फ्रैंक, लेट्स बी फ्रैंक। आसिफ अजीज साहब, आपकी औलाद के लिए कोई जगह नहीं है इस वक्त के मौजूदा पाकिस्तान में कि वो
compete कर सकेगा उस वल्चर कल्चर के सिक बाय प्रोडक्ट्स गून कल्चर में। हम मजबूर हो गए हैं, हमारी मोहब्बत उस मिट्टी से है। हम इधर आज शाम बैठे हुए, घंटों घंटों से बैठे हुए, क्या है, हम पागल हैं? अपना वक्त जाया करते हैं, छुट्टी का दिन है, वीकेंड पे घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के इस सेशन में बैठे हैं इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए। पाकिस्तान से एक हमारे अंदर एक तड़प है कि हमारा मुल्क भी ठीक हो जाए। आपको मैं अश्योर करवाना चाहता हूं, ये जो आपको मीडिया पे परसेप्शंस बनती और दिखाई देती हैं, अगर लॉलेसनेस है, अगर किसी जगह पे गवर्नेंस कोलैप्स हुई नजर आती है, सिर्फ वो ना देखें, वो इमरान खान की हुई नहीं है। इमरान खान की हुई चीज वो देखें कि हर एवरी सिटीजन इन केपीके, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, AJK would have a health insurance card in their hands in coming months. हेल्थ इंश्योरेंस का साथ मेरा चौकीदार 7 लाख रुपए का कार्ड उसके पास है। किसी भी इस्लामाबाद की हॉस्पिटल में वो अपनी फैमिली को लेके जाता है, वो कार्ड देता है, ही गेट्स रिकॉग्नाइज्ड। ये इमरान खान की गवर्नेंस को देखें, ये देखें कि मुफलिसों को किस तरीके से स्टाइपेंड सपोर्ट, इवन इफ इट्स नेग्लिजिबल, वो ये डिलीवरी है, ये परफॉर्मेंस है। स्टेट का कोलैप्स नजर आता है, वो इमरान खान का किया हुआ नहीं है। जो इमरान खान की हुई चीजें हैं अंडर द लिमिटेड कैपेसिटी दैट ही हैज। सबसे बड़ी बात, आपका लीडर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसको खरीद सकता है। ये 2 नंबर लोग जिन्होंने ठेके लगाए हुए थे पाकिस्तान की सियासत पे, और मुझे दुख है मेरे माजी का कि मैं भी एक बहर में उसी कारवां का हिस्सा था, मगर अल्लाह ने समझ दे दी। इमरान खान से वर्ल्ड लीडर्स सीख रहे हैं, सीखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स सीखते हैं। अगेन अनदर एस्पेक्ट, सीरतुन नबी, ये क्या थे ठेकेदार इस्लाम के? पगड़ बांध लिए, दाढ़ियां बढ़ा ली, दुनिया का हर गलत काम करो और इस्लाम की ठेकेदारी। इमरान खान ने एक मॉडर्न, एनालिटिकल, प्रोफेसोरियल, स्कॉलरली एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड आशिक रसूल होने का सबूत दिया है, प्रचार किया है, एडवोकेसी की है, एजुकेट कर रहा है नेशन को। दैट्स द लीडर। मुझे दिखाएं तो सही हमारे नाकदीन क्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो जो जुर्लू बैठा है लंदन में, जिसको अपने स्क्वायर फुटेज का पता नहीं है, एक नहीं 2 बैठे हैं, कराची से भी है और लाहौर से भी है। उनके भेजे में कितनी कैपेसिटी है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनकी डिलीवरी है। और लिफाफे एंड द रेस्ट, फ्रीडम ऑफ मीडिया वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अस। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर फ्रीडम ऑफ मीडिया से कोई पार्टी हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है, इमरान खान का काज हुआ है, सोशल मीडिया हो या रेगुलेटेड मीडिया हो। मगर जब आप अपने प्रिंट मीडिया को आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी बना दें, एडवोकेसी ऑफ क्रुक एंड क्रिमिनल बना दें ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, रॉन्ग को रॉन्ग ना कहें, तो वो कोई फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं है, कहीं भी नहीं, यहां भी नहीं है। मैं वॉशिंगटन से आया हूं, वहां भी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। एक फिजियोलॉजिकल लिमिट होती है हर चीज की,
जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तो पैथोलॉजिकल टेरिटरी में आ जाता है। तो ये जो बाबे बैठे हुए हैं 70 साल के वल्चर कल्चर के इन द मीडिया हाउसेस, अपनी आंखें खोलें, नहीं तो इनके कब्रिस्तानों में जहां जाएंगे वहां पे दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और नीचे से वो याद है मुझे अनवारुल हक का, जिसके जनाजे को छोड़ के भाग गए थे सारे। I'm sorry I got carried away। मौलवी मुश्ताक का, ये खुदा का खौफ करें, सच को कहें, सच को सच कहें। जी हां, हमारी गवर्नेंस में कबाहतें हो सकती हैं, सिस्टम्स आर नॉट फंक्शनिंग 100% और इवन टू द सेटिस्फैक्शन फॉर मेनी ऑफ अस। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ के जो है वो पटवार खाना खोल लें और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा बन जाएं और कवर लें आप फ्रीडम ऑफ मीडिया का। Nowhere in the world that kind of freedom of pathological freedom of world media is allowed. Nowhere. It's a pathological freedom of media that would not be allowed under Imran Khan. To conclude, हमने आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मुझे यकीन है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस ऑडियंस already have their NICOPs. May I take the liberty of asking you, in all honesty and fairness, please raise your hand who is carrying the NICOPs. Carrying now? Okay? Or have the NICOPs? Have the NICOP. Have the NICOPs. MashaAllah. That's very good. मैं दूसरा सवाल ये पूछना था कि पासपोर्ट पाकिस्तानी कितनों के पास है, लेकिन मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने के लिए नाइकॉब का होना मस्ट है। तो मगर जो अभी खान साहब ने हमें एम्पावर किया है बाय ओवरसीज वोटिंग, उस पर मैं 1 सेकंड लेना चाहूँगा आपका। उसमें अभी भी कुछ स्टेप्स हैं, जो दुश्वारियां हैं उनको अबूर करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो मंजिल भी आ जाएगी। उसमें 2 IDs मांगी गई हैं, पासपोर्ट एंड नाइकॉब, विच इज़ अनफेयर, दैट वुड बी एड्रेस्ड। मैकेनिज्म ऑफ आई वोटिंग फॉर ओवरसीज, उसका मैकेनिज्म इवॉल्व होगा एज वी गो फॉरवर्ड इंशाल्लाह। वी विल सक्सीड इन दैट। मगर हम एक एज अ पोलिटिकल पार्टी, आई अज्यूम वी ऑल आर PTI बिकॉज दिस वॉज पार्टी कन्वेंशन, पार्टी सर्कल गैदरिंग। हम ये चाहेंगे कि PTI कनाडा से आज से वी आर लॉन्चिंग अ कैंपेन टू रीच आउट टू Canadian Pakistanis in various communities to focus the dense pockets of the community and campaign for enrollment of NICOP, Roshan Digital Pakistan, and I presume within 3 to 4 months electoral roll, voting electoral roll भी नादरा, hopefully election commission and नादरा would work out a mechanism and there would be registration of voters, जिसमें आपका email, which is your email, which would be second code डाल के जैसे verification, second verification step होता है, that would be the mechanism। इंटरनेट वोटिंग का सिस्टम, उसकी शक्ल शबी निकल आएगी इंशाल्लाह। एंड नाइकॉप रजिस्ट्रेशन की कैंपेन, वी आर इन इलेक्शन मोड एज एन फुट सोल्जर्स ऑफ खान साहब फॉर 2023 इंशाल्लाह। 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल में खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में बिठाएंगे और वल्चर कल्चर को तहस नहस करके रखेंगे।
मुहिम के लिए हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स इन कनाडा तश्कील दी है, जो डिफरेंट रीजन्स में एक प्रोग्राम चॉक आउट करेंगे और एवरी मंथ कम्युनिटी इंटरेक्शंस करेंगे। फैसिलिटेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन का वो हिस्सा होगा जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट एवेन्यू, रीचिंग आउट टू देसी, ऑल पाकिस्तानी इंटरनेशनल stores, community centers, religious gathering places, PTI के youth, PTI की women and PTI workers would structurally make an humble effort to bring awareness that how important it is for everyone to register for NICOP and register to vote. And इंशाअल्लाह ताला ये इसको हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम एवेल्युएट करते रहेंगे, इसमें जो कमियां पेशियां होंगी उसको हम इम्प्रूव करेंगे और इसकी एक चेन ऑफ कमांड हमने इस्टेब्लिश की है। एंड कैनेडा इज द फर्स्ट लॉन्चिंग पैड फॉर दिस मिशन और टुडेज कन्वेंशन इज द बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोसेस, ताकि हम अनलीश कर सकें वो हिडन पोटेंशियल टू टारगेट एंड डिमोलिश द वल्चर कल्चर इन पाकिस्तान। इसकी क़यादत इस कमेटी की प्रेसिडेंट पीटीआई कनाडा करेंगे और इसके मेंबर्स में अकमल गंदारा साहब, सीरत अब्बास साहब, सलमान सईद बसरा साहब, आलम सलीम साहब, जफर चौधरी साहब, मलक जमील साहब, साबिर साहब, आरिफ मनाज साहब, हारून वड़ाइक साहब, अली बुखारी साहब, डॉक्टर समीना बाजवा, and if found to be required, the President of Canada can add more women secretaries in the committee, depending upon the location and the chapter where the activity is required, with consultation of Dr. Samina Bajwa. इस कमेटी को मैं खुद सुपरवाइज करूंगा एंड द डिप्टी सेक्रेटरी नॉर्थ अमेरिका who would be our own favorite, inshallah, within next few days, my dear Saif Pannu Sahab. Saif Pannu Sahab has recused himself from PTI Canada responsibilities effective today, and executive committee would sequentially elect Chaudhry Naeem Riyazat Sahab as President PTI Canada. And I have the honor of requesting Saif Sahab to stay on my right side so that I can get more counsel and get wisdom from Canada through his leadership. He has been excellent friend and brother and support and a comrade. हम सब में हम खामियों का मुंबा है अपनी ज़ात में हर इंसान, मगर जो हम काम करते हैं उसमें जो ऑनेस्टी, dedication, conviction and ability to do it, that is what matters. And Saif Saab ने prove किया है against many odds that he is someone who can navigate this terrain of difficult, negative, at times petty, at times not graduating from self-centered and very introvert kind of attitudes. हम सब एक evolution process में हैं
एंड पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आ रही है। एंड आई मस्ट शेयर विथ यू कि ओवरसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टुडे द मोस्ट रोबस्ट पॉलिटिकल विंग ऑफ PTI Pakistan, linked with 76 elected chapters all across the world, more than 65,000 digital members who are subscription-based members and loyalists of Imran Khan. And we will double it inshallah with this crowdfunding. And we will challenge all those monsters who have looted the coffers of Pakistan, and they are deploying that resource to buy more vulture culture minions to damage this honest, hardworking, sincere and untouchable leader of Pakistan, Mr. Imran Khan, and we stand with him. Thank you very much. Engage them inwardly towards Pakistan and participate in supporting political process at home. And obviously we are engaging to increase and reach out for Pakistan Tehreek-e-Insaf membership. And in that process we are committed. Our leader is committed and his administration is committed to facilitate Pakistani diaspora on all their issues, including the visas and or anything else, including dead bodies going to Pakistan or various other community issues, community centers, empowerment. मगर जहाँ तक हमारा पॉलिटिकल तंजीम का कोई काउंसलेट की एक्सटेंशन बनना, that is not our objective. We are a political party and that's the government. हाँ, हम रीच आउट कर सकते हैं फैसिलिटेशन टू एक्सटेंड कर, एम्बेसडर हो, हाई कमीशन हो, काउंसिल जनरल हो, but we are not, and I discourage my PTI leadership all across the world कि हाई कमीशन या एम्बेसडर या काउंसिल जनरल की खुशनुदी हासिल करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। No, if the government of Pakistan needs the help, they can always reach out to the community, and if that is what is required. I mean, so that is really the extent of it. We are on the same page. मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि PTI का जो इलेक्टेड लीडर है, जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, they are not the extension of any bureaucrat or any government institution. We are political party, वो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है। हम पाकिस्तान में वजीरों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते, हम सेक्रेटरीज के दफातर में जाके कम्युनिटी सेंटर अगर पाकिस्तान का उसमें बिल्कुल सही है। कम्युनिटी सेंटर के लिए हाई कमीशन जो अभी राठौड़ साहब आए हैं उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है, दैट कैन बी लुक्ड इनटू, एंड आई विल डू एट द अर्लीस्ट एट माय होम विथ योर गाइडेंस। आई प्रॉमिस। थैंक यू। थैंक यू आसिफ साहब। अभी प्लीज़ बी ब्रीफ और क्वेश्चन जो भी आपका मुख्तसर क्वेश्चन रखें ताकि अगर कोई और भी हैं क्वेश्चन जो आंसर्स किए जा सकें। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान अरशद साहब फॉर कैनेडा 1। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं IOC का जो किरदार है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिला। वोटिंग राइट तो हमारे पास पहले से भी था, लेकिन हमें पाकिस्तान जाना पड़ता था वोट करने के लिए। अब जो हमें फैसिलिटेट करने का राइट मिला, उसमें जो किरदार IOC ने अदा किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही मैं ज़ैद मलूक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी मीडिया की टीम की तरफ से इनसे जब भी रब्ता किया गया, इन्होंने हमें वापस फ़ौरन रिप्लाई किया। जब भी इनसे रिप्रेजेंटेशन मांगी गई PTI की TV पे आके हमारे सवाल का जवाब दें, he was the first one to answer, and when no one was found, he took time out to answer our questions. My question here is a little different because we talked about disinformation. As a
media person, when we give strict statements against India, not specifically India, on the issues of Pakistan against India, we're contacted, our channels are contacted by the embassies of India कि आप ये नहीं कर सकते, हमें ये इंफॉर्मेशन का हम पर शू करने का खतरा भी होता है। लेकिन तारिक फतेह जैसे लोग मीडिया पर आकर बात करते हैं, कनेडियन मीडिया का एयर टाइम यूज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी उस पर कभी कोई एक्शन नहीं लेती। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। If we talk about Kashmir on media, we are scared to talk about Kashmir on media because we know Indian embassy will right away take an action and contact our channels and maybe even authorities. Yet, no one from Pakistan side has spoken about journalists who have defamed Pakistan over and over again. Please take a look into it and any reply from the PDF firm or from the government of Pakistan firm, because ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें, अपनी कैपेसिटी में करें। जमात के साथ जुड़ना ज़रूरी है, सियासी जमात के साथ, लेकिन पाकिस्तान comes before anything. Thank you so much. सलमान साहब, you have raised a very good point. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। यकीनन पाकिस्तान is what we are. Pakistan political parties after first is country and we are for Pakistan. Every effort, every political party makes this for the country. और अगर ये फतेह साहब जो हैं वो जहर उगलते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को लेटेंटली अनचेक्ड वो मीडिया टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, वी विल लुक इनटू दैट। जी थैंक यू। अभी आवाज़ एंटरटेनमेंट से फहद इकबाल साहब, प्लीज़ बी ब्रीफ। जी इस सवाल को मेरा ताल्लुक आवाज़ एंटरटेनमेंट से है। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आप लोग यहाँ पर आए, बड़ा शुक्रिया। अच्छा, मैंने एक शो किया था एक ऑर्गेनाइजेशन एमपैक के नाम से और उसके रूए रमायश सैयद नसीर वजार और अब्दुल करीम अतिया। अब ये सुनिए उन्होंने क्या किया, मैं जल्दी बताऊँगा। उन्होंने 10 लोगों ने एक अपनी US कमर्शियल जो कॉन्सुलेट है, कमर्शियल सेक्शन के जो हेड है, उनके साथ उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अमेरिका आके फाइंड आउट करें टेक्सटाइल के अलावा what are the other products that we can export from Pakistan to US. So consulate service helped them, Pakistan consulate in Washington, New York, they helped them and they have accumulated 4,000 list of items that you can export from Pakistan to US. You guys have already established network over here, right? MashaAllah, you said that you have 65,000 people all around the world. Why don't you guys take a task and create some sort of committee over here that will take all the list of things that we can export from Pakistan to these countries. I think that will add so much, Zaire Mubata to our Pakistan. जहाँ पे कारोबार, ये कारोबार आ जाता है, लफ्ज़ ट्रेड एंड कारोबार जो है उसके लिए गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करती है एंड एंटरप्रेन्योर्स परफॉर्म करते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन दिस हॉल, वी डोंट टेक अप दैट सच एजेंडा। यस श्योर दैट ट्रेड मिनिस्ट्री, government of Pakistan should be looking at the regulations, should be looking at the list, should be doing the priority, they should do their job. हमारा ओवरसाइट का डिस्टेंटली रोल हो सकता है, मगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम ये मिशन एंडोवर नहीं कर सकते कि हम ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप का बेड़ा उठा लें। अंडरस्टूड, वो 400-4000 आइटम जो भी हैं वो ऑब्वियसली कहीं लिस्ट बनी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में होगी, TDR में होगी, समवेयर, एंड आई एम श्योर रिस्पॉन्सिबल पीपल वुड बी वर्किंग ऑन इट। और इस पे अगर फर्दर आपके पास कोई इंसाइट है जो मैं कहीं शेयर कर सकूँगा तो आई विल बी हैप्पी टू फॉरवर्ड। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अभी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी टीवी, गौहर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल आपसे ये कि जो एंटी एलिमेंट्स पाकिस्तान है, कोई भी वाक़या हो जाता है पाकिस्तान में, स्पेशली सियालकोट का हुआ, तो हर आदमी
आदमी आकर हर सोशल मीडिया हर एलिमेंट एंटी एलिमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बातें करते हैं, तो आपके ख्याल में आपका कोई ऐसा विजन है कि हम उन्हें इनकाउंटर कर सकें ट्विटर पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेगेटिविटी है वो ना हो? बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली टारगेटेड क्वेश्चन जिस पे काम नहीं हो रहा, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर काम नहीं हो रहा। Certain places, certain individuals might be taking upon themselves to be what and do, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है, जो हमारा ट्विटर टीम है, they follow certain links from the party central information department, which does have back-end feed from Ministry of Information कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको वो पिक करते हैं। तो our Twitter and social media team maybe is not focused on this aspect of it, वो ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन वाला एस्पेक्ट करते हैं। मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा, हाईलाइट करूँगा कि जो एंटा पाकिस्तान कैंपेन्स रन होती हैं उस चीज़ को भी फोकस किया जाए। एंड आई एग्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू।